Hello and welcome. You're watching One India News. This show is Pole Vault, and as the name suggests, there are so many developments happening as we inch closer to the general elections 2024. What is transpiring in New Delhi is something which is nothing short of surprises to many political parties. Yesterday it was Congress. Today, Aam Aadmi Party once again. Even Arvind Kejriwal being arrested yesterday, and before that, in the day, we saw the Congress Party, the whole gamut coming out to the media and telling them the story, the situation that how the funding has been seized as of now, the money, the bank accounts have been seized. All those things, once again, are putting the BJP in the dock. And to discuss the matters further, we are joined by Tehseen Poonawalla, a senior political analyst, and Keshav Karn, my colleague, editor of OneIndia.com. Tehseen, first things first, double whammy, both for Congress and for Aam Aadmi Party. How do you see the developments in light of what the Aam Aadmi Party and Congress claimed it to be targeted systematically? Pankaj, thank you so much for having me on the show, and such an honor to be with Keshav ji. Two very quick points. One, I have, and we've all covered politics. Pankaj, you have a very long career covering politics, and of course, there is politics, there is political vendetta. We've seen parties go after each other, but the one thing that kept India apart from everything within our address, within our geography, was free and fair elections that provided a level playing field. How is it a level playing field? In terms of the principal opposition party, the Congress, you have a tax claim of 14 lakh rupees. Please understand, political parties are exempt from paying tax. This 14 lakh rupees is now, they've seized 200 crore rupees for this 14 lakh rupees. Okay. This at a time when there was a delay in filing the tax returns. It's not that they did not file it. Why was a delay in filing the tax returns? There was COVID and the treasurer died. As per the election commission, so Motilal Vora ji died. As per the election commission, the treasurer is responsible for filing it. So you first file it to the election commission, then to the income tax authorities, because that's your adjudicating body. So because of that delay, with an exception from the election commission, they filed it on a delay, but income tax has gone after them. Now they've gone after them on a 90s notice. Who has, let's ask your viewers, who has their income tax papers from the 90s? If this is not vindictiveness, what? They're ready to pay the 14 lakhs. You can charge them 14 lakhs and some penal amount and allow it to go on. And on a matter where they've gone to a tribunal where the income tax is ruling against them. It's terrible. Look at Arvind Kejriwal. Today in court, just now, before I joined the show, ED says they have to establish a money trail. If you don't have a money trail, why is Sanjay Singh and Manish Sisodia in jail for 1 year, few months and 4 months in jail? That time you said the money trail was there. And you know in PMLA, you are guilty until you prove yourself innocent. It's the twin conditions. But to get bail, you don't go into facts of the case. Therefore, ED will get away saying anything sensational and nothing will come out of it. We're living in absolutely draconian times. Should a chief minister be arrested because you have to find evidence? Is the power to arrest equal to the necessity to arrest somebody? Where was he running away? What is this? And there's one last point. Arvind Kejriwal ji has been arrested on the basis of a statement of somebody who was initially an accused. From an accused, he then pays money to the BJP via electoral bonds, becomes an approver, and names the political rival of the BJP, and then subsequently pays another 40 crores to the BJP via electoral bonds. And that man's statement is taken as a statement. This is ridiculous. That's what's going on. Absolutely. So, Keshav ji, before, I let you take further questions with Tehseen, very critical aspect here. Guilty until proven innocent, whereas rest of the laws would say innocent until proven guilty, even within India also. Is this, the timing and the use of the Brahmastra, as Tehseen put it, as the draconian system on? What is your take on it? So, I have the clear opinion that the law takes its own course. मैं तहसीन की जो बातें थी उसमें से कुछ बात और उठाना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियां वेंडेटा पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जो उनका खाता वही सीज करने का मामला है, उसमें इनका पक्ष कोर्ट में भी गया और उन्हें खाली हाथों वापस आना पड़ा। तो कोर्ट तो वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है तहसील।
और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को लेकर आपके सुर इतने कैसे बदल गए जल्दी? क्या आप दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी है उसमें किए गए बदलावों के साथ हैं, या फिर ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक दशक पहले कहा करते थे जांच तो हो जाने दो, और करीब 4 महीने से सम्मन दर सम्मन वो इग्नोर कर रहे हैं? यहाँ भी एक जो जांच एजेंसी है कोर्ट में जाती है जी, कोर्ट में जाने के बाद एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लेती है। क्या इसमें भी वेंडेटा आप कहेंगे? जी, मैं से वेंडेटा कहूँगा केशव जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने जो बात रखी कि मैं पहले इनकम टैक्स की बात कर दूँ कांग्रेस की, फिर मैं केजरीवाल जी पर आता हूँ। इनकम टैक्स में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए कि फॉर डायरेक्ट रिलीफ, तो उनको कहा गया कि यू हैव टू गो टू ट्राइब्यूनल्स, और ट्राइब्यूनल्स वही इनकम टैक्स सुन रही है और कह रही है आप 200 करोड़ भरो 14 लाख के लिए। आप मेरे किसी फैक्ट पे, आप तथ्यों पर आप मुझे चैलेंज नहीं कर रहे। 14 लाख का डिस्प्यूट था, वो भी डिस्प्यूट नहीं है, वो उसको नॉन टैक्सेबल मांग रहे, जबकि इनकम टैक्स इज नॉन टैक्सेबल फॉर, वो टैक्सेबल मांग रहे जबकि इनकम टैक्स इज नॉन टैक्सेबल फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो 14 लाख के फिगर पे डिस्प्यूट नहीं, लेट फाइलिंग पे डिस्प्यूट नहीं है। केशव जी 2 मिनट, वो कह रहे आप लेट आए उसके लिए 200 करोड़ हम ले लेंगे, ट्राइब्यूनल वही जजमेंट दे रहा, वो उस मामले पे गए, फैक्ट्स ऑफ द मैटर पे हाई कोर्ट पे नहीं गए, अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। दूसरी चीज जो आपने अरविंद केजरीवाल जी पे कहा, समन्स पे 9 समन्स गए। केशव जी भगवान न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे, आपको पंकज जी को मुझे अगर कोई पुलिस थाने से समन्स आते हैं, कहीं से भी समन्स आते हैं, तो उसमें लिखा होगा ना हमें किस कैपेसिटी में बुला रहे, विटनेस या गिल्टी या हम अक्यूज्ड है। समन्स में कुछ लिखा नहीं गया। कल हाई कोर्ट में ईडी कहती है माननीय हाई कोर्ट को हम अरविंद केजरीवाल को पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे। आज ये कह रहे आम आदमी पार्टी के पास पैसा गया, हमें मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करना है। अगर मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, 1.25 साल से नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, एक 4 लोगों के स्टेटमेंट में जिसमें से एक स्टेटमेंट चेंज किया गया है पैसे देने को भाजपा के बाद, आप एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हो, तो मुझे पता नहीं कौन सा लॉ ऑफ द लैंड है सर। नहीं, तहसीन जांच हो जाने में क्या दिक्कत है? ये वही मुख्यमंत्री मैं ये आपको बताता हूँ करते थे कि जांच में क्या है, पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, नजर आ रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न और था, क्या आप एक कांग्रेस सिंपैथाइजर कह लीजिए, स्पोक्स पर्सन कह लीजिए, और रादर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, क्या आप दिल्ली शराब नीति में किए गए बदलावों के साथ हैं? सर बात ये नहीं कि मैं किसी के साथ हूं या नहीं हूं, बात यह है कि क्या लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एक चुनाव आ रहा है, देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव रहा है 2024 का, और देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के पास पैसे नहीं, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में, दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जेल में। बात इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि जांच क्यों नहीं होने देते, बिल्कुल सर जांच हो रही है, लेकिन आप जानते हो सर ईडी में बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन होने की वजह से द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। 0.5% है ईडी का कन्विक्शन रेट, 0.5% साहब, द प्रोसेस इज द कन्विक्शन। जांच करें ना, कौन मना कर रहा? आप अरविंद केजरीवाल को समन कीजिए, बताइए आप अक्यूज्ड है, बताइए आप विटनेस है, जो है, और उसके हिसाब से जांच कीजिए। जांच ऐसी तो नहीं हो सकती किसी को जेल में रखते आप कहते हो। उस कोर्ट ने ही कल कहा कि इनफैक्ट कल कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई कि यदि आप केजरीवाल जी को क्यों सम्मन किया जा रहा है उनको नहीं बता सकते हैं, तो कम से कम हमें यह बताइए क्या सबूत है जिसके लिए उनको गिरफ्तार करना है या उनसे पूछताछ करना जरूरी है। और कोर्ट की सहमति के बाद ईडीआई का प्रोसेस आगे बढ़ा है। पर क्या सबूत पब्लिक डोमेन में है केशव जी? क्या आपने सबूत पढ़े? मैंने नहीं पढ़े, पंकज जी ने नहीं पढ़े। ये मैं वही कह रहा हूँ, देखिए केशव जी ने, कोर्ट ने देखा होगा केशव जी, डेमोक्रेसी कांट बी एब्स्ट्रैक्ट। कोर्ट ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा, विपक्ष के नेता ने देखा होगा। सर डेमोक्रेसी में सब कुछ लोगों के सामने होना चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री पे सर, एक मिनट सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड बना रहे हैं सब कुछ। अदालत में सब कुछ फैसला होने लगे तो फिर जो संस्थाएं आपकी सरकारों ने ही बनाई हैं, आपकी हमारी सबकी सरकारों ने, उनका क्या महत्व रह जाएगा? नहीं, ईडी को समझना चाहिए कि उनका क्या महत्व रह गया है। ईडी बनी थी, ईडी बनी थी जब इसका ईडी का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब यूनाइटेड नेशंस में इसकी कल्पना हुई थी, ये टेररिज्म और ड्रग्स फंडिंग के लिए हुई थी। माननीय वाजपेयी जी ने जब ये कानून पास किया था और कांग्रेस ने उसको अप्रूव किया, टेररिज्म फंडिंग, इसका ऑब्जेक्टिव टेररिज्म और हवाला रिलेटेड टू टेररिज्म है। आज सर ईडी के अंदर एक फाइनेंस
बिल की तरह उसको पास करते ताकि राज्यसभा में न जाए, क्योंकि इनके पास उस वक्त राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। वर्तमान सरकार ने सर उसमें कॉपीराइट डाला है। सर कॉपीराइट का ये मतलब होता है कि आप और मैं इस शो में अगर सरकार को पसंद नहीं आया, एक पंकज जी को कॉपीराइट में जेल में डाल सकते हैं ईडी के अंदर, और कहेंगे हमें 300 करोड़ मिल गया, तहसील ने 300 करोड़ दिए पंकज को, हमें पता है यहाँ पर घपला हुआ है, अब हम इसकी जांच करें, 1.5 साल तक जेल में रहेंगे, होगा कुछ नहीं, 1.5 साल के बाद छूटेंगे, होगा। सब करीबन 20,000 केसेस है ईडी के, 10 या 12 केस में बेल मिले। क्यों सर? सर मैं आपको एक ऐसा भी केस बताता हूं कि एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है ईडी के अंदर, वो ईडी उसको समन करती है, वो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट, एंटीसिपेटरी बेल लेके आता है, बहुत मुश्किल से एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। फ्राइडे को ईडी समन करती है, ईडी में जाता है एंटीसिपेटरी बेल लेकर, ईडी उसको उस केस में अरेस्ट नहीं करती, फ्राइडे शाम को दूसरे केस में अरेस्ट करती है, और फिर ईडी आर्ग्यू करती है कि हमें अरेस्ट देने की वजह नहीं है, आपको वजह बताने की जरूरत नहीं है ईडी के अंदर, क्योंकि हम पुलिस नहीं है। सर ये कोई तर्क होता है एक लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर? मैं जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूं, ये छोड़ दीजिए आप भाजपा के समर्थक है कांग्रेस के, क्या एक लोकतांत्रिक मुल्क में ये होना चाहिए? हाँ या ना आप उसमें बताइए सर। कोर्ट को हमने सीक्रेटली बता दिया, सीक्रेट क्या होता है आप केशव जी को बताइए, बताइए पंकज जी को, अगर अरविंद केजरीवाल छोड़े इसको पब्लिक डोमेन में रखिए। आप सूत्रों के हवाले से कहते हो 300 करोड़ का मनी ट्रेल है, कोर्ट में कहते हो हमें एस्टेब्लिश करना है, ये कौन सी बात हुई? नहीं सर, कन्विंस नहीं है कोर्ट। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं सर, ईडी के मामले में भगवान ना करे आप या मैं ईडी में अरेस्ट होगा, आप दोषी होगे जब तक स्वयं खुद को निर्दोष साबित नहीं करोगे, और निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट डज नॉट गो टू फैक्ट्स ऑफ द मैटर। प्लीज इस चीज को समझिए। तो कोई भी एजेंसी आ जाएगी कह रही नहीं हमें तहसील के पास दूसरा 100 करोड़ का ट्रेल मिला, हमें और 10 दिन चाहिए उसकी कस्टडी। कोर्ट हैज टू गो विद द प्रिजम्पशन कि आप गिल्टी हो सर। And that's what distinguishes it. इसलिए मैंने उस समय कहा था कि ब्रह्मास्त्र की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है। ईडी ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रॉड और उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स के अंतर्गत आती है, जबकि इसका इस्तेमाल जिस तरह से देखा जा रहा है वो क्रिमिनल केसेस को टारगेट करते हुए हो रहा है। Tessin, I know the time is of essence here and you are hard pressed on time. One final question: the heat is on, the onslaught is also on. We have seen since the India Alliance came into picture, there has been these developments, not just here, down south also. DMK too feels the heat. West Bengal, we have seen how the attacks from the BJP on the TMC has been. How do you see the alliance tackling it as we head to the elections? The alliance will have to be united. They'll have to meet the election commissioner. They'll have to meet. They'll have to go to courts together. They'll have to go to the honorable president of India. They'll have to make it a political fight. One is a political fight, but I want through your medium, your viewers to understand. The honorable prime minister and the BJP targeted Chhagan Bhujbal personally. Targeted him personally. Said he's absolutely corrupt. When Chhagan Bhujbal and Ajit Pawar joined forces with the BJP, Chhagan Bhujbal's file was lost by the same enforcement directorate. They lost his file and therefore they shut the case. A BJP MLA was found with 9 crore rupees cash. 9 crore rupees cash. The case is closed now because in court they said we raided him without taking his permission. This is what's going on. And if we don't speak about this, Himanta Biswa Sharma, a white paper against him was removed by BJP. Today he's an approver. So if you join the BJP from an accused, you'll become an approver. Just like this gentleman who's become an approver against Arvind Kejriwal ji, and he's given BJP 5 crore rupees and then 40 crore rupees subsequently. It's criminal, and this should be spoken about. Right. Tessin, thank you so much. I know it calls for another long discussion, but thank you. As always, a pleasure to speak to you. Keshav Karan, thank you so much for taking time. Thank you, Tessin. Subscribe to One India channel and never miss an update.